Hello dear students, welcome to the online class of English Grammar with Anurag Srivastava. Dear students, I hope you are getting audio and video very clear at this time, and I want to say that this is my first video. Let us move ahead without any delay and start the topic. Today the topic is narration. Here is written narration. The question is now, what is narration and what is the Hindi meaning of narration? Narration is extracted from the word narrate. We can say it also kathan, and another name in English here is speech. Now I want to say that narration is also called speech, and at first you will have to understand that what is the definition of narration. Listen to me carefully, because dear students, this is very important chapter for the class 9th, 10th, 11th and 12th. Its definition is telling a story or describing what happens is called narration. Once again, listen to me. Telling a story or describing what happens is called narration. Now, I want to say that there are two kinds of narration. I have told you that this is called speech also. And if any person asks you how many kinds of narration are there, then you will have to say that there are two kinds of narration. The first is direct narration, and the second is indirect narration. And now, like the definition of narration, now you will have to understand and you will have to pay attention that what is the definition of direct narration and what is the definition of indirect narration. And also you will have to clear that what is the difference between direct narration and indirect narration, and how can we understand that what is the example. फ्री ध्यान दे बच्चों, अब हमें ये क्लियर करना है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, और दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, कैसे हम पहचानें कि कौन सा दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है या फिर कौन सा दिया गया सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है. तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा क्या है, और ये भी जानिए कि इस डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, इस इनडायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. डेफिनेशन, look here and pay attention to what I say. Its definition is when
the words or sentence given by the speaker is mentioned without any change, then the sentence is called a direct speech. Once again, when the words or sentence given by the speaker is mentioned without any change, then the sentence is called a direct speech. And now, here is indirect narration. Its definition is when the words or sentence given by the speaker is mentioned, is expressed according to our convenience, then the sentence is called indirect speech. In Hindi, you should know also, when the words or sentence, जब शब्द या फिर वाक्य गिवन बाय द स्पीकर, जो वक्ता के द्वारा दिया जाता है या वक्ता के द्वारा बोला गया है, इज मेंशन्ड, मेंशन्ड मीन्स उल्लेख कर दिया जाना, विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के, देन द सेंटेंस, तो वाक्य इसका कहा जाता है अ डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, दोनों एक ही हैं बच्चों। इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे और क्लियर करें, इसे ध्यान से सुने। जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहलाता है। और अगर वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्त करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। Now we have to clear that what is the difference between direct narration and indirect narration. Let us move ahead and show a figure to understand what is direct narration and what is indirect narration. 3. तो चलिए बच्चों, ये क्लियर किया जाए कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम ये जान पाएँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। और इसके लिए यहाँ फिगर बना हुआ है। इस फिगर से हम ये समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। सपोज दैट हियर इज अमन एंड हियर इज विजय एंड हियर इज माई सेल्फ अनुराग श्रीवास्तव। दोनों सपोज करिए ये दोनों किसी फील्ड में बैठे हुए हैं, ये दोनों किसी फील्ड में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं वहां नहीं हूं, और ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं जिसको मैं ध्यान से देख रहा हूं। अमन और विजय आमने सामने बैठ करके फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं जिसको मैं ध्यान से देख रहा हूं। और मुझे ये पता है कि सबसे पहले बातचीत करने वाला जो था वो अमन ही था। और सपोज करिए कि अमन ने विजय से जो कुछ कहा वो यहाँ लिखा गया। अमन said to विजय, I am going to अकबरपुर। अमन ने विजय से कहा, मैं अकबरपुर जा रहा हूँ। लेकिन बच्चों, अमन ने जो बात कहा था, ये अमन है, ये विजय है और ये मैं हूँ। अब बच्चों याद रखिएगा
जो बात को कहना स्टार्ट करता है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले जिसने बात शुरू किया था वो अमन है। तो हम चलिए इसको मानते हैं कि यही स्पीकर है, यही वक्ता है, और ये जो विजय है ये लिसनर है, श्रोता है। क्योंकि विजय ने अमन की बात को सुना था और अमन ने अपनी बात विजय के सामने एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था। तो अमन सेड टू विजय, आई एम गोइंग टू अकबरपुर। अब सपोज करिए अब मैं वहां पहुंचता हूं, किसके पास? विजय के पास। और वहां से अब ये अमन चले गए, अब वहां नहीं है, अमन वहां पर नहीं है। मैं विजय के पास सीधा गया और इनसे पूछा, विजय टेल मी कि अमन ने तुमसे क्या कहा है। अब देखिए ये दोनों जब आमने सामने थे, फेस टू फेस थे, स्ट्रेट थे, सीधे थे, तो ये लाइन लिखा गया है। इसने अपनी बात को अपने ही अनुसार एज इट इज ज्यों का त्यों व्यक्त कर दिया इसके सामने। अब समझ लीजिए ये वहां से चला गया, तो सीधी सी बात है कि ये फेस टू फेस अब नहीं रह जाएगा जब हम इसके पास जाएंगे, क्योंकि फेस टू फेस तो अमन और विजय थे, और अब हम यहाँ पहुंचे हैं तो ये फेस टू फेस नहीं रह गया, ये डायरेक्ट नहीं रह गया। डायरेक्ट तो ये था ना, स्ट्रेट डायरेक्ट फेस टू फेस ये था, लेकिन अब ये जो है ये फेस टू फेस नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट है। अगर मैं इनके पास जाता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि विजय बताओ अमन ने तुमसे क्या कहा, तो ये लाइन जो लिखा गया है वो इसने व्यक्त किया था, लेकिन जब मैं इनसे पूछूंगा तो ये अपनी सुविधा के अनुसार जो वक्तव्य देंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, और उनका वक्तव्य करेक्टली ये होना चाहिए। अमन टोल्ड विजय दैट ही वाज गोइंग टू अकबरपुर। और आपकी सुविधा के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा, सीधी सी बात है, अगर ये पूछा जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का डिफरेंस बताओ, तो आप ये भी बता सकते हैं कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मिलता है वो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट कहलाता है, और जिसमें कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा नहीं मिलता है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है।